Assalamu alaikum dear students. I am your chemistry teacher Vikar, and today we will continue our chapter number 8, that is carbon and its compounds, from our chemistry portion class 10th. In today's VPPT lecture we are going to talk about our second topic from this chapter, that is bonding in carbon. Topic second, bonding in carbon. Till now we have seen how useful is carbon to us, and in our last lecture we got to know about its occurrence in nature as well. Before going ahead in this chapter via this topic, let me give you a brief idea about ionic and covalent bonding. It is a brief idea. We know that atom can either share, lose or gain electrons to stable their octet, which means they should have 8 electrons in the last shell. Now the compounds which are formed by gain or loss of electrons are called as electrovalent or ionic compounds, while as those compounds which are formed by sharing of electrons, simply sharing of electrons, are known as covalent compounds. Now come back to our today's topic, that is bonding in carbon. Let's start. As we already know that the atomic number of carbon is 6. Now look at the electronic configuration of carbon. In our first shell, that is K shell, we have 2 electrons, and in L shell, that's our last shell of carbon atom, we have 4 electrons. We have already mentioned this in our previous lecture. We can say it is some sort of recapitulation or revision. Now here let me tell you briefly about a theory, namely octet theory. This theory tells us about that there should be 8 electrons in the last shell. इस थ्योरी से हमें पता चलता है कि लास्ट शेल में, किसी भी एटम के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. ये हमें वहीं से एक्सेप्शन भी बताता है कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ना हो पाए तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देयर, इट्स नोन एज ऑक्टेट. अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देयर, इट्स नोन एज डुप्लेट. ओके, इट मीन्स कि आखिरी शेल में किसी भी एटम के या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो. नाउ लेट्स कम बैक टू आवर कार्बन. इन द लास्ट शेल ऑफ कार्बन एटम देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स. ये तो हमें पता है, ठीक. नाउ कार्बन हैव 2 ऑप्शंस टू गेट इट्स ऑक्टेट configuration, or we can say that to attain its noble gas configuration. It has 2 options to get it. Number 1, the first option for carbon is to gain 4 electrons. 4 electrons ये हासिल करे to attain its noble gas configuration, or to attain octet configuration. Number second option for carbon is to lose its 4 electrons. ये अपने 4 electrons lose करे ताकि इसकी जो configuration क्या बने, डुप्लेट बने. डुप्लेट जब ये लूज़ करेगा 4 तो रहेंगे वहाँ पे 2 electrons, तो इसकी configuration बनेगी डुप्लेट एज पर द ऑक्टेट थ्योरी. मतलब कि डुप्लेट बन जाएगा ये. बट
बोथ दिस ऑप्शंस आर नॉट फिजिबल फॉर कार्बन। ये दोनों के दोनों ऑप्शंस फिजिबल नहीं है कार्बन के लिए। क्यों नहीं है? उसके दो रीजंस है मेन। इफ़ इट गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स हासिल किए, it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 electrons. That's because of 4 extra electrons. हमें पता है कि कार्बन के न्यूक्लियस में 6 ही प्रोटॉन्स अवेलेबल है, तो वो 6 प्रोटॉन्स थोड़ी वहाँ पे और 4 इलेक्ट्रॉन्स को, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 इलेक्ट्रॉन जो नए आ रहे हैं हुए 10 इलेक्ट्रॉन्स, इनको अकोमोडेट कर पाएंगे वहाँ पे, उनको वो डिफ़िकल्टी हो गई इसको होल्ड करने में। रीज़न नंबर सेकंड, if carbon atom loses its 4 electrons, it would require a large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 protons in its nucleus holding to just 2 electrons. Because of these two reasons, it is not feasible for carbon to attain octet or duplet configuration. कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम। हमारा कार्बन क्या करता है? इट शेयर्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। तो भाई कार्बन क्या करता है यहाँ पे? कार्बन हमारा शेयर करता है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। ना ही तो कार्बन इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा और ना ही ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होती है कार्बन में? शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब ये शेयरिंग कैसे करेगा? अब इस बात को समझने के लिए हम हाइड्रोजन H2 गैस, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हम अब देखेंगे कि क्या होता है वहाँ पे, कैसे दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में कैसे वो बॉन्ड बनाते हैं, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कैसे क्यों बनाते हैं, वो हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने दिखाया एग्जांपल वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। As we all know that the atomic number of hydrogen is 1, so it has only 1 electron in its outer shell, so it needs one more electron to get its duplet complete, to get its duplet configuration. So it approaches to another hydrogen atom which also needs one electron to get its duplet complete. तो ये दोनों हाइड्रोजन आपस में आते हैं, वो बोलता है कि यार मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दीजिए तो मेरा डुप्लेट कंप्लीट होगा, वो भी बोलता है मुझे आप अपना दीजिए तो मेरा डुप्लेट कंप्लीट होगा। इस तरह से ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये अब दोनों के हो जाते हैं, मतलब म्यूचुअली शेयर हो जाते हैं। म्यूचुअली का मतलब यहाँ पे बराबरी से शेयर हो जाते हैं। अब पहला वाला जो हाइड्रोजन है, फर्स्ट हाइड्रोजन, जो पहला वाला हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये अब इसके भी अब आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो दूसरा वाला है इसके भी आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनके बीच एक बॉन्ड बनता है जिसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हमें कोवेलेंट बॉन्ड को अब डिफाइन करना होगा, कोवेलेंट बॉन्ड इज ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। अगर ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। तो हाइड्रोजन में यहाँ पे एक ही पेयर, वहाँ पे एक ही सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही है, तो यहाँ पे क्या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे दूसरी एग्जांपल दी है O2 मॉलिक्यूल की, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन के जो लास्ट सेल है, लास्ट सेल में यहाँ पे इसको और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके दो और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है, ये दूसरे ऑक्सीजन को अप्रोच करता है, वहाँ पे म्यूचुअली वो शेयर करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ओ यहाँ पे क्या बनता है?
डबल कोवलेंट बॉन्ड, ओ डबल बॉन्ड ओ, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे शेयर होते हैं। इसी तरह से मैंने तीसरी एग्जांपल यहाँ पे दी है जिसमें कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, वो किस मॉलिक्यूल में, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में। यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन जो एटम होता है, इसके जो आउटर शेल है, लास्ट शेल है, जो वैलेंस शेल है इसका, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है ताकि ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा अपना, ताकि स्टेबल बन जाएगा। तो ये दूसरे नाइट्रोजन के पास अप्रोच करता है, जैसे कि हम यहाँ पे देखो, पहला वाला नाइट्रोजन दूसरे वाले नाइट्रोजन के पास जाता है और यहाँ पे अप्रोच करता है ये, यहाँ पे ये अप्रोच करता है, पहला वाला नाइट्रोजन दूसरे वाले नाइट्रोजन के पास जाता है, अप्रोच करता है, फिर ये आपस में म्यूचुअली शेयर करते हैं, यहाँ पे बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे बॉन्डिंग होती है, फिर इस तरह से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है। तो 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर होते हैं, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब जो ये जो कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हमें बने, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। दीज कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स शोज 2 मेन प्रॉपर्टीज़, एज दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। इट्स ऑल बिकॉज दिस कोवलेंट बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड्स, दे हैव स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है जो ये दिखाते हैं हमारे जो ये कोवलेंट कंपाउंड्स है, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी या मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं कर, चार्जेस कैरी नहीं कर पाते हैं। सिंस इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, दे सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर होते हैं, एंड यहाँ पे कोई आयन बनता ही नहीं है, देयर इज़ नो आयन फॉर्मेशन। जब आयन्स नहीं है तो चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे कौन कैरी करेगा, तो ये प्योर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये जो दोनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड्स ने दिखाई, ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज़ अगर हम एनालाइज करेंगे ना अपने कार्बन को, कार्बन या कार्बन के कंपाउंड्स को, इफ़ वी एनालाइज अ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स, वहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इससे हमें पता चलता है, इट मीन्स कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन शोज़ कोवलेंट बॉन्डिंग, इट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन शोज़ कोवलेंट बॉन्डिंग। यहाँ पे कार्बन में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चल रहा होता है। सो दिस वाज आवर today's topic. This concludes our topic for today. I hope you all understood it very well. See you guys in our next VPPT video lecture. Till then, Allah Hafiz.